Anyways, we are okay. Thank you. So have you solved the question number 6 also? Five, six, five. No, sir. No, not No, tried. sir. Not tried. No, sir. Okay. Anyways, no problem. Let's. So I will try to finish this two problem, remaining two problem, uh, in this session, and I think I will complete this, and this we have to submit within next month. No, sorry, next week. The question number Fifth. listed here. So this is the question number 5. हेलो सर हेलो हाँ बोलिए. सर वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन आपने ए कैसे फाइंड किया जो ए आपने लेट किया ना उसको किधर कौन से प्रॉब्लम में बोल रहे हैं आप? प्रीवियस सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3. यस सर यस Problem number दैट ए 3. पार्ट Huh? दैट ए पार्ट सर हाउ यू कैन फाइंड दैट Your voice is breaking. I can't understand which example you're talking about. हेलो Yes, yes, बोलिए. हाँ सर आपने ये कैसे फाइंड किया था ए डेटा बेस्ड ऑन वाई वाई आपके वाई पास मीन मतलब सर ओके, ये टेबल आपने बनाया था लास्ट टाइम, y बार वाला टेबल याद है? हाँ 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 रिमेम्बर? यस यस तो ये टेबल को आप एसडी मोड में फीड कर दो. ओह अच्छा सर हाँ यस और आई जो गेट इट सिग्मा स्क्वायर मिलेगा दैट इज योर वेरिएंस, यस यस राइट? यस यस थैंक यू Any सो other मच सर doubt? Please ask. See, until unless you will not ask your doubt, I may not understand whether you are understanding or not. So even if it is silly, there is no problem. You can ask your doubts. Okay, any other question? Any other doubt? Hello, sir. Can you show me that table once again? See, this table is for problem number 2. I have not created table number for 3. That I told you to create it, right? So I'm just Yes. giving the hint how Yes, you sir. have calculate this y bar. ये table. समझ रहे बेटा आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So ये मतलब जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे आप हाँ. कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस ऑफ y बार. Yes, sir. Sir, I got. Okay. Okay. Any other doubt? Anyone? No. Let's proceed. Solution for this one. Okay. So I hope everybody have the question with them, and I hope everybody is knowing how to write the practicals in the practical sheets you can call, or book you can call. Write down the questions and then question and solution, because I think we don't know whether maybe at the end of the month or at the end of this year whether we can do physically practicals. Okay, तो better है कि आप क्वेश्चन आंसर ये फ्रेम में लिखो, so that while studying that practicals you can understand, you can like कि प्रॉब्लम आपको ढूंढने के लिए आपको गूगल क्लासरूम में जाना ना पड़े. आपको प्रॉब्लम सामने दिया है, उसका सोल्यूशन सामने दिया है, so it's become easy for you. हेलो सर. Yes, बोलिए. सर मैंने प्रैक्टिकल 1 में क्वेश्चन नहीं लिखा था, प्रिंट निकाला सर. अच्छा, print. See, if you can able to find print, it is good, no problem at all. But अगर print का सुविधा नहीं है तो no problem at all. You can go with the writing questions, no problem at all. For mind paper there is no problem. अगर लास्ट में मान लो एंड मोमेंट पे अपने को क्वेश्चन पेपर अटैच करने को मिलता है तो और अच्छा है, क्वेश्चंस भी है और प्रैक्टिकल शीट्स भी है. अगर नहीं लिखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अटैच कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके ओके, सर. यू कैन गो विथ बोथ, बट क्वेश्चन आपके हैंड में होना चाहिए while reading the practicals. ओके सर. Okay, okay. So let's understand the question first. So what is your n here? Small n. स्मॉल 5. Yeah, take down that. Small n is 5. Capital N is 10. 10. Okay, next. What is given here? What are these? What are these values? Sample. values are These are the values what? Value of small n. Sample. These are small values, sample values, right? So y1, Yes. y2,
I think total 5 observation is there, right? So Yes. y5. So this is the 5 value, small sample value. And what you have to do with this, you need to find out 95% of confidence limit for population mean. तो 95% ऑफ कॉन्फिडेंस मीन कैसे निकालोगे आप अभी बोलो? तो 90 इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. तो फॉर्मूला कैसे अभी याद है आपको? याद है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला, कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द पॉपुलेशन मीन. Yes, sir. व्हाट इज द फॉर्मूला? X bar minus Z alpha by 2 एक्स बार minus Z alpha by 2. प्लस माइनस, आई कैन टेक डायरेक्टली. हाँ सर, हाँ प्लस और माइनस. इज इट जेड और टी? T alpha by 2 comma n minus 1 because sigma is unknown na, Yes, sir. Yes. and square root of, or I may remove square root, no problem. अभी देखो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, बिकॉज एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करना है, न कि राइटिंग ऑल थियरी पार्ट एवरीथिंग. ओके, Hello, sir. इंस्टेड ऑफ y बार आई कैन यूज. यस बोलिए. सर सिग्मा स्क्वायर अननोन क्वेश्चन में दिया नहीं है सर ऐसा कुछ. हाँ दिया नहीं, इसलिए तो हम लोग स्मॉल स्क्वायर लिख रहे हैं ना बेटा. ओके सर. गॉट माई पॉइंट? यस. यस. तो सिंस हियर सिग्मा इज अननोन, अभी इसके लिए आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा. देखो, सो आई विल शो यू थियरी साइमल्टेनियसली बिकॉज आई हैव ऑल इनबिल्ट नोट्स इनसाइड माय प्लेटफॉर्म. ओके, सो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं, इवन आपका बुक भी खोलने की जरूरत नहीं है. मतलब पढ़ने के लिए जरूरत है, बट आई कैन शो इट फ्रॉम माय नोट्स हियर डायरेक्टली. I hope you can able to see my screen. I'm scrolling that. Yes. So see, I'll just take the recap. Confidence limit for population mean. So I have given two cases when sample size is large. Sample size is large and sigma is known. So if sigma is known, then you can go for this result under this category. Sigma square by n. Okay, तो ये मिलता है. But if sigma square is unknown, you have to replace it by n minus n sigma square. upon. But ये कब? जब आपका सैंपल साइज लार्ज हो, बट इट इज नॉट लार्ज, n is 5, राइट? तो अपने को प्रीवियस वाला यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा. तो उसमें हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं. टी डिस्ट्रीब्यूशन सिंस योर n is small. तो n स्मॉल है, तो आई थिंक फॉर्मूला यू कैन एबल टू सी ऑन द स्क्रीन. एंड सिग्मा अननोन है, इसलिए इट इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल s. Small s. Is that clear why we are using this formula? Yes. Okay, anyways, I will just write it down on this screen so that you can there will be not any doubt. So here n is small. N is small. I can say n is less than 30. So when n is less than 30, we have to use t distribution. देखो ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आप लोग कंफ्यूज कभी होने का नहीं है. When n is less than 30, use t distribution. When n is greater than 30, less than equal to 30, then t distribution. Greater than 30, then use Z distribution. Z distribution. Okay. Now, but here also sigma is known and sigma is unknown. तो सिग्मा अगर नोन है तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा, डायरेक्टली सिग्मा आ जाएगा. बट सिग्मा अननोन है, देन हैव टू रिप्लेस देयर एस्टिमेट. लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि वेदर इट इज SRSWR और SRSWOR. सर WR दिया है. दिया है क्या? हाँ सर, विद रिप्लेसमेंट दिया है. अच्छा, मैं इधर पढ़ा नहीं. मैं दिया है विथ रिप्लेसमेंट. दिया है. हाँ सर. अच्छा हाँ, करेक्ट. It is given 5 sample of size packed from the population of 10 units with replacement. Correct, with replacement. तो सोचो
if you just read the problem very carefully you can able to understand the problem it is with replacement. but सोचो अगर मैंने with के बदले without लिख दिया और आपने पूरा सोचा कि अरे ये तो with ही है और आपने पूरा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 0 मिलेगा सर. 0 मिलेगा. I hope you are understood me. You can understand Yes, me sir. why it is 0. बिकॉज देखो प्रॉब्लम में क्लियरली मेंशन किया विथ यूज करना है, मतलब आपको बहुत बारीकी तरीके से प्रॉब्लम को समझना है और उसके बेसिस पे अपने को कॉन्फिडेंस इंटरवल को वर्कआउट करना है. ठीक है. ओके सर. अभी अभी मेजर टास्क यही है कि ये वैल्यू हमको मिलेगा कहाँ से. तो अगर आप कोई वैल्यू निकाल सकते हैं तो ठीक है, और इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये सब आप पेपर 1 में स्टडी करेंगे. तो इवन I can able to show you how to calculate this value. You can use Google to ask how to calculate t value. तो t value टेबल करके जैसे आपने z वैल्यू का टेबल तो आपने z वैल्यू का टेबल आपने पढ़ा रहेगा, बराबर है. यस सर, यस. हाँ, फर्स्ट ईयर में. उसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज भी होते हैं. जैसे अगर अल्फा आपका 5% है तो z वैल्यू 1.96 होगा, राइट. हाँ सर, हाँ. मतलब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं. बट एक टी के स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं होते बिकॉज टी थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इज स्क्यूड. इट इज यस. स्क्यूड. तो स्क्यूड होने की वजह से ना वैल्यू आपका अप डाउन होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टी का वैल्यू निकालेंगे और वाई बार स्मॉल एस तो आप कैलकुलेटर से निकाल ही सकते हो जस्ट फीडिंग दिस डेटा, राइट. यस. Okay, so let me just write it down here. What will be the alpha? So alpha become how much alpha it is? Can you tell me alpha is how much percent alpha? 99. Alpha Hmm. 100 1 minus alpha percent is going to be 99%. मतलब ये जो 99% है वो मेरा कॉन्फिडेंस बताता है. वो मेरा क्या बताता है? कॉन्फिडेंस बताता है. तो टोटल ये पोर्शन जो है मेरा, ये पोर्शन फुल, ये पोर्शन मेरा है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है मेरा 99%, मतलब 0.99. तो रिमेनिंग कितना परसेंट रहेगा? अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 यस. अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2. तो इट इज गोइंग टू बी 0.005 0.005 बिकॉज 1% बचता है ना. 1% मतलब क्या? इट इज 0.01. फिर से इसको डिवाइड बाय 2 करना है तो कितना होगा? 0.005. इफ यू जस्ट एड अप दिस क्वांटिटी इट होल टर्न्स आउट टू बी 1 because we know the area under normal curve is going to be 1. So if 101 minus alpha percent is 99%, मतलब टोटल कॉन्फिडेंस अगर आपका 99% है तो अल्फा कितना होगा? अल्फा is going to be 1%, 0.0. okay, so this is 0.01. so if alpha is 0.01 but we need t alpha by 2, तो alpha by 2 कितना हो जाएगा आपका? 0.005. तो अभी आपको ये t अल्फा बाई 2 n-1 कितना होता है आपका? तो t 0.005 n-1 मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है तो 4 होगा. इसका वैल्यू आपको मिलेगा 4.604 यूजिंग t टेबल. सर वो देखते कैसे टी का टेबल की वैल्यू? हाँ सर वो टेबल पे मतलब चेक कैसे करते हैं ठीक है, टी टेबल पे वैल्यू? I'll show you. आप तो सर्च ऑन गूगल और आप जब ये वैल्यू फीड करोगे कैलकुलेटर में, इफ यू आर गोइंग टू फीड दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर, उससे आपका वैल्यू आप निकाल सकते हैं. स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू 46.8 एंड स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू 189.2. तो सब वैल्यू आपको मिल गया. वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है. अच्छा कुछ मेरा आवाज इज माय आई एम ऑडिबल टू ऑल? आई थिंक एवरीवन. यस. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलिए. Yes, I am audible to all, I think, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes.
Okay, so I'll show you how you can calculate t का table का value in yeah, this is all you're going to study in paper 1, but still I'll tell you how to. So in Google just search t table, okay, Okay, sir. just type t table or maybe how to calculate t table. See, if you just type t tables, there are so many pages will come in the picture, okay. अभी ना इसमें बहुत सारे टेबल मिलता है आपको, वो कंफ्यूज नहीं होने का, वन टेल टू टेल सब मिलता है, ठीक है। तो अपने को सर्च प्रॉपर्ली करने का कौन सा टेबल अपने को यूज करना है। अभी देखो ये टेबल जो मिला है वो किसका टेबल है, पहले अपने को वर्कआउट करेंगे हम लोग। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको यही टेबल फिर से मिले, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पे कि टी जो टेबल हम निकाले हैं वो टेबल किसके कौन से पर्पज के लिए यूज हो रहा है हमारा, ओके। तो मुझे मेरा अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वन टेल दिया है आपको। I think I have shared my screen. हाँ Can you सर, able to see my yes, T yes, table sir. value? Yes. Okay. So there is a T tail and there is a two tail and there is a cumulative probability. सब है इसमें, ओके। तो क्या करना है, अपने को टू टेल देखना है। टू टेल में अल्फा कितना है मेरा, 0.005. नो नो, अल्फा इज 1%, Yes, 0.01। yes, तो yes. देखो अल्फा ढूंढ लिया। Hmm. देखो टू टेल में आपको ये वैल्यू चेक करना है, ये वैल्यू, Fourth. दिस वैल्यू, ओके। टू टेल बिकॉज योर अल्फा इज 1, अल्फा इज 1% और एन कितना है आपका 4। 5. तो जैसे डाउन आएंगे आप 4 में तो आंसर मिलेगा 4.040। देखो मिल रहा है क्या? 4.604. Yes, sir. यस यस यस। I hope you understand. You can take the screenshot of this or it is very simple. No need to take screenshot. गूगल पे आप जैसे टाइप करोगे ना, जैसे टाइप करोगे तो जो दूसरा लिंक होगा उस पर क्लिक करो, आपको ये मिल जाएगा। एक बार इसको आप इसका स्क्रीनशॉट आपके सेलफोन में डाल के रखो तो सो दैट आपको बार बार गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ सर. इमीडिएटली स्क्रीनशॉट खोलने का, वैल्यू चेक करके वापस ले लेने। Yes, sir. ओके। So have you understood how to calculate the t-tap or t-calculated value? Yes, sir. Yes. Okay. So कोई भी ऑब्जर्वेशन है, आपको केवल अल्फा चेक करना है। अभी देखो अल्फा यहाँ पे 2%, यहाँ पे वन टेल का भी है, टू टेल का भी है। हाँ. अपने को केवल टू टेल पे जाना है बिकॉज वी आर फाइंडिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कभी भी टू टेल का होता है। देर आर वन टेल ऑल्सो बट वन टेल हमको पढ़ना नहीं है, वन टेल का हमको निकालना वैल्यू नहीं है, ओके। तो इसका वैल्यू मिलता है 4.604। इज दैट क्लियर? Yes. ओके। तो अभी आपके पास y बार है, s स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूट करो, मुझे फाइनल आंसर बोलो, चलो फटाफट। I'll stop sharing this one. Just tell me the value of confidence interval after calculating everything. So 99% confidence interval for population mean is this comma this. So now you have to tell the answer. Let's see how many are joined. So 51.404. 51.404. 51. 51. Yes. Uh, is it lower value or upper value? Sir, upper value. Upper value. Hmm, थोड़ा सा डिसमैच हो रहा है, just check it once again.
सर 51.404 ही आ रहा है पर। अभी आ रहा है. हाँ सर Okay. वही आ रहा है। Let's wait for another. 46.8 प्लस 4 मेरे हिसाब से तो 18 पॉइंट समथिंग लोअर वैल्यू आ रहा है और 75 पॉइंट समथिंग अपर वैल्यू आ रहा है. आई डोंट नो, मे बी इट इज रॉन्ग, बट जस्ट लेट मी नो वेदर एनी सर अदर स्टूडेंट्स हैव कैलकुलेटेड. सर 46.8 प्लस Yes, sir. I have 4.604 got same answer. सेम आंसर, विच आंसर, लाइक माइन आंसर और 51.404। Your answer. ओके ओके ओके. 75 point something. अच्छा, अरे प्लस माइनस जस्ट चेक करो ना वापस से एक बार आप. सर 46.8 प्लस 4.604 51 ही आ रहा है। ये आंसर मुझे मिला है, मतलब एज पर गिवन इन माय सॉल्यूशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, जस्ट अ मिनट. Yeah, just giving the answer for this one. This is 75.1211. अब बेटा आपने s लिया है कि क्या लिया है? यहाँ पे s बाय रूट एन है. यस सर स्मॉल एस लिया है सर। स्मॉल s मतलब स्मॉल s हाँ सर कितना है यही आपका? वाला एस लिया है इसका स्क्वायर रूट लिया है ना आपने? सर। हाँ सर बस इसको 13 स्क्वायर. पॉइंट सर हाँ स्मॉल एस का 13.7549 डिवाइड हाँ बाय रूट 5। हाँ, मेरे को ये आंसर मिला. एक बार वापस कैलकुलेट करो ना आप. 46.8 लिखो प्लस हाँ सर प्लस 4 हाँ 4.604 लिखो हाँ सर इनटू स्क्वायर रूट में 189.2 डिवाइडेड बाय 5. स्क्वायर रूट हाँ में सर ब्रैकेट डालना है दोनों. हाँ हाँ हाँ, बस चेक करो क्या आ रहा है. 75 आ रहा है क्या? हाँ सर 75 आ रहा है। हाँ, जस्ट हेलो सर। हाँ बोलिए. सर मैंने ना स्मॉल एस का वैल्यू लिया था, स्मॉल एस बाय रूट एन लिया था वो। सर वो होल रूट है क्या? हाँ, वो पूरा होल द एंटायर रूट है नो 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 बट नो, सी आई हैव हियर s स्क्वायर ना, यस। तो अगर इसको मैं s स्क्वायर के फॉर्म में ओह लिखूं यस कैसा हाँ रहेगा? हाँ यस आई अंडरस्टूड हाँ हाँ, अंडरस्टूड। तो वैसा भी आप लिख कर सकते हैं. अदरवाइज फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट फाइंड स्मॉल s and then divide by root and you can do it, no problem. ओके सर। Chalo. So I think this is solved. So here what I can conclude using this result, 99% means out of 100%, 99% chance that my population mean belonging to this class, belonging to this interval. मतलब out of 100, 99% I may say that with confidence, my population mean belonging to this interval, and only 1% I will say that above of this range. Okay, this is a conclusion one can write. Okay, go to next example. Question example number. I hope you can example number next. You can do it. हेलो सर। Yes, बोलिए.
सर लेकिन फॉर्मूला में तो y बार प्लस टी अल्फा बाई 2 कॉमा n माइनस 1 है ना सर, हाँ कॉमा है। नहीं नहीं बेटा, ये जो है ना ये साथ में ही है पूरा, ये जो टर्म है ना ये थोड़ा हाँ सर, कंफ्यूज हाँ है, ये पूरा साथ में ही है, पूरा टी का वैल्यू है ना ये पूरा साथ में ही है। हाँ सर सर, हाँ n सर, ओके माइनस ओके। वन उससे मल्टीप्लाई में है ना। नो, इसके साथ में नो है, नो नो नो। इसके साथ में ही है टी सब। टी अल्फा अल्फा बाई बाई 2 2 के के साथ है। मल्टीप्लाई में है ना। हाँ ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है। मतलब नो पहले टी सर, अल्फा बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको n माइनस 1 से नो मल्टीप्लाई नो करेंगे ना। नो नो नहीं नो, नहीं 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 नहीं। साथ में हो। ये टी अल्फा बाई 2 कॉमा n माइनस 1 का डायरेक्टली टेबल वैल्यू मिल जाएगा आपको, विच इज अच्छा सर, 4.4। ओके, See, that's when फिर I जीरो have करेंगे। shown you the I have shown you the this what is that table. You can see here it is given alpha, और उसके नीचे हमने n ढूंढा ना, उसके नीचे हमने हाँ n सर, सर्च किया, तो ये t alpha by 2 comma n minus 1, this is the way you have to always search for search in the table. आप देखो z में, z में भी तो आप लोग वही करते थे ना, z अल्फा बाई 2 कभी मे बी नहीं यूज करते रहेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगा, क्योंकि वो यस सर। लार्ज है तो आप डायरेक्टली लास्ट वैल्यू यूज करते, बट टेबुलेटेड में आपको स्मॉल वैल्यू ही यूज करना पड़ेगा। ओके एनीवेज ठीक है, आई होप इट इज क्लियर हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज, राइट। यस सर, यस। सो हम लोग को लगता था सर n माइनस 1 सेपरेट टर्म है, नो इसलिए नो सर नो रॉन्ग नो हुआ था। नो नो नो, इट इज विथ कॉमा एंड ये पूरे का वैल्यू 4.04 आता है, और फिर उसको 4.60। मल्टीप्लाई करेंगे एस पे एंस। ओके हाँ जस्ट, सर, हाँ। ओके सो जस्ट गो विद द नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन। इसमें आपको मैन्युअली डेटा दिया है, आपको मैन्युअली वर्कआउट करना है। ओके तो देखो आप वर्कआउट कर सकते हैं क्या, मुझे आंसर बताओ। A sample of 1 by 20 farms in a certain district gave the information regarding the acre under the wheat. Your capital N is 125, small n is actually it is not 1 by 20. It is, I think, just make this correction. I think this is going to be 20 only. Okay, just make 20 this one. ओके सर। A sample. It is sample ना, तो 1 by 20 कैसे हो सकता है? हाँ सर, स्मॉल नहीं आएगा, अच्छा स्मॉल लेटर लॉजिकली चाहिए। बोलता है रेशियो नहीं होगा, वो बाय मिस्टेक while maybe typing, maybe the same thing is happened in the your practical, huh? Please make that correction. Maybe ओके सर। while typing it is become reciprocal. Okay, no problem. So 20 farms in certain district give the information regarding the acre under wheat. So these informations are given to you, and you need to just understand. Uh, you need to compute the 90% confidence limits for average and total acre, मतलब एवरेज के लिए भी निकालना है कॉन्फिडेंस लिमिट और टोटल के लिए भी निकालना है कॉन्फिडेंस लिमिट अंडर द वीट इन द पॉपुलेशन। अभी लेकिन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कैसे मालूम पड़ेगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं दिया है, दोनों में से हाँ कोई वही भी। तो बताओ ना, क्या करेंगे फिर हम लोग। सर दोनों करना पड़ेगा ना। क्यों? सर विदाउट रिप्लेसमेंट। यस विदाउट रिप्लेसमेंट। वही इसका एफिशिएंसी। इसका आंसर हमने आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कस किया था, व्हाई, हाँ राइट, बिकॉज विदाउट यस रिप्लेसमेंट इज सर। मोर efficient than with replacement, that's why हाँ you सर, हाँ। always go by without विदाउट replacement। रिप्लेसमेंट। Okay, okay, so how do we calculate, so let me start right on this one, some details.
So n is given here 20, capital N is 125, of and what is given, you can have summation. तो summation है तो आप वहां से y bar निकाल सकते हो, राइट? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। हाँ, स्क्रीन नहीं दिया क्योंकि वो हाँ स्क्रीन थोड़ा सर। सा कनेक्टिविटी की वजह से वो बार बार डिस्क्लोज हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है बार बार। ओके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, सर दिख ही नहीं रहा। अभी दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। तो y बार क्या होगा यहाँ से आपका, व्हाट कुड बी y बार? 115.05 11 15.05 115.05 5.5, 5.05 अच्छा 5.05, 115 एक थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ। To use calculator. So 2301 divided by 20. So it is 115.05. Okay. What else we require here? Small square, because small square. तो small square कैसे मिलेगा अभी? क्या फॉर्मूला होता है तो स्मॉल फॉर्मूला स्क्वायर सर का? यस, यू हैव टू यूज 1 upon फॉर्मूला। n minus 1 तो नहीं, वो भी नहीं यूज करना पड़ेगा, ये यहाँ पे अपने को अलग अलग समेशन दिया है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। स्मॉल स्क्वायर अपॉन क्या था उसका, माइनस एन, उसका दो तीन फॉर्म दिया है मैंने, देखो। So you have to go with this form. This is equal to summation yi minus y bar a whole square upon n minus 1. divided by n minus 1 हाँ, तो आपको कोई भी फॉर्म से जाना पड़ेगा। तो आपको अगर ये डेटा दिया है तो ये फॉर्म यूज करना पड़ेगा। नाउ वी हैव गिवन स्प्लिट डेटा, तो गो विद दिस डेटा। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आई थिंक मिलता है आपको 1329 पॉइंट। प्लीज लेट मी नो दिस आंसर whether this is correct or not. Okay. This will be the answer for smallest one. Then what will be next? कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला यूज करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। Oh, so are you going to use here T distribution or Z distribution? so T distribution T distribution. हेलो सर बोलिए, सर स्मॉल स्क्वायर का 267754 आ रहा है सर क्या आ रहा है? 267754 इन मतलब वही आंसर नहीं आ रहा है जो मैं लिखा है। नहीं सर वो नहीं आ रहा है अल्फा इज 1%, 10%।
they know based on that their 10% is large. So okay, so just let's wait for other students whether what they are getting, and then based on that we can conclude the result. So I'm waiting for other response. What will be S square? I hope everybody is calculating, not copying. हेलो सर. Yes, बोलिए. सर 1021.81 ये आ रहा है. सबको ही मिल रहा है क्या? जस्ट वेट करते हैं 2 मिनट और चेक करते हैं, मतलब रिजल्ट वही मिल रहा है कि कुछ अलग मिल रहा है. और भी स्टूडेंट्स का आंसर्स चेक कर लेते हैं हम लोग. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर समेशन वाई आई का स्क्वायर का 207261 है ना, हाँ माइनस समेशन ऑफ वाई बार का स्क्वायर 2301 का राइट स्क्वायर राइट राइट राइट. 2301 का स्क्वायर. तो सर आंसर उससे चेंज सर, होगा, आंसर चेंज होगा. करेक्ट. हाँ सर ये आंसर नहीं आएगा. ये आंसर नहीं आएगा, बराबर है. राइट. यस, बोलिए क्या मिल रहा है आंसर. हाँ सर एक मिनट बता रहा हूँ. सर 102 102 11.81 11.81. 0.81. Excuse me, sir. यस बोलिए. Sir, we have to use first formula, na, or this one second? You're talking about confidence Small s interval. square. Small s square. Small s square. Small s square because sigma is unknown na here. No, sir, which formula? This first wala, na, ki summation of y I square minus n y bar square upon Yes, n yes, minus yes. 1. See, this can't be used because we don't have this directly, na. So have to use this one only. I am सर getting मैंने sec- 264730.05. Same, sir. Huh? I am getting 264730.05. हेलो सर. Sir, यस सर. I'm सर getting मैंने सर same. सेकंड फॉर्मूला यूज किया सर. लेकिन सेकंड फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं बेटा आप? यूज ही नहीं इसको हो. यही है ही नहीं ना, कैसे यूज कर पाएंगे? हाँ सर. सेकंड वाला इज नॉट पॉसिबल टू यूज बिकॉज वो डेटा सफिशिएंट नहीं है अपने पास. ओके, टेल मी द आंसर. जो जिसको 264730. 264730. एक मिनट गड़बड़ हुआ, फिर से बोलो. 47 30 0.05. 264730.05. Okay, please check other students this answer whether it is coming right or wrong. Yes, sir, it is right. Yes, sir. Okay, fine. Okay, now you have to calculate t alpha by 2 comma n minus 1. So this is going to be what? Your alpha is how much? Alpha is 10%, right? So this is t Yes. 0.05 comma 20. So 20 minus 1, 19. 19. Yes. So this value you have to calculate using table. So just I'm sharing the table value. You can see. So this is your alpha is 2 tell. Your alpha is 10%. So 10% is this one, and n is 19. So you can see this value.
So this is your value for this one. So 1.729. Have you cleared how to calculate this value? Table, using table. You can just download it and you can work on this also. Okay. So that you will get the idea, more idea. हेलो सर 210 दिखने पे है ना? To tell. So this is 1.725. $1.729, sorry. Yes. 729. Let me share. This is 9. So you can now substitute these values in 90% confidence interval. To mean और to average जो भी mention यहाँ पे किया. Oh, hang हो रहा है. So you can just take down those, because it is like taking me time to write it down. So you can just write it down. So formula अपने को without replacement use करना है. इसका formula आपको मालूम है. Capital N minus small n divide by confidence 90%. For population mean. So it is going to be what? Y bar plus minus t का value alpha by 2 comma n minus 1 and square root capital N minus small n upon capital N upon 20. y again it is सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है. अब वो स्क्रीन बार बार बंद हो रहा है मेरा मतलब नहीं क्या. I'll close other all this thing. क्या होता है कभी कभी ज़्यादा विंडोज ओपन करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाता है. Okay, anyways you can just work on this and you can take down the answer for this. Small n square s square, I think it is inside this we have s square. Okay, so you can now feed this. You can directly substitute the values and get the answer for this. अभी टोटल के लिए क्या करोगे आप लोग? What do you how to calculate for total? टोटल के लिए मैंने क्या बोला है सर आपको? दोनों को हाँ? सर दोनों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा अपर और लोअर को. अपर लोअर को ऐड करना पड़ेगा मतलब? सर टोटल फाइंड करना है ना. No. You have to find 95% confidence limit for total also. टोटल के लिए भी निकालना पड़ेगा आपको. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? I think you have to multiply with capital N. तो टोटल के लिए आप क्या करते हो? कैसे टोटल निकालते हो आप? आपको याद है इसमें? ये तो आपने पॉपुलेशन मीन के लिए निकाल लिया तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया. आपने टोटल के लिए
वाई बार कैसे निकाला, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हाउ डू यू Yes. कैलकुलेट फॉर टोटल, तो ये वैल्यू कैसे निकाला आपने टोटल के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे आपको टोटल के लिए वाई हैट निकालना पड़ेगा. सो यू नीड टू कैलकुलेट y का वैल्यू, तो y कैसे निकालेंगे, इट इज n इंटू स्मॉल वाई बार, तो जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे. फिर यहाँ से आपको सिमिलरली वेरिएंस निकालना पड़ेगा, वेरिएंस, तो वेरिएंस का Yes. फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे, n स्क्वायर इंटू N वेरिएंस ऑफ square y. into यस, तो वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए क्या करेंगे आप, n स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार, जो आपने ऑलरेडी निकाला है. तो स्मॉल वाई बार क्या है आपका, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू. 115.05. हाँ, तो ये n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय करेंगे 264 पॉइंट, सॉरी नॉट पॉइंट, 264 730 या 730.05. 05. तो ये जो भी वाले निकालेंगे वो आपका हो जाएगा वेरिएंस वाला पार्ट, वेरिएंस ही होगा ना. हाँ सर. तो सर वेरिएंस ऑफ y हैट आएगा ना. इतने एस्टिमेट्स नहीं निकालना है मुझे. यहाँ पे कैसे निकाला है आपने, देखो वाई हैट कैसे निकाला है आपने. you have calculated this value and based on that you have calculated the y hat का value. y means okay, हाँ, तो एक्चुअली आपका ये वेरिएंस है पूरा ना. हाँ सर, वो रूट में नहीं होते हैं. सी इन जनरल फॉर्मूला हम लोग सॉरी, इन जनरल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं वेरिएंस का, y बार प्लस माइनस t और z इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है ना. ये फॉर्मूला दिया है मैंने, राइट, कॉन्फिडेंस का. इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इन जनरल मेरा फॉर्मूला ये है और मुझे टोटल के लिए निकालना है. टोटल के लिए कैसे होगा, you have to just multiply with n here, n y bar plus minus t square root of, means you will take square root of here n means you are going to multiply with this quantity by n also, right. So variance when you pull out this n out, स्क्वायर रूट है तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये इसके हिसाब से मुझे लगता है आंसर आपका आना चाहिए. ए भी क्रॉस चेक करिए और ए वैसे भी आप वर्कआउट करिए, देखिए आंसर क्या मिल रहा है. तो ये सिचुएशन में आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्या फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, यूज दिस फॉर्मूला फॉर यूजिंग दी वाई हैट का कॉन्फिडेंस लिमिट प्लस माइनस टी, ए वैल्यू सेम रहेगा आपका, ये वैल्यू सेम रहेगा टी अल्फा बाई 2 n माइनस 1 सेम रखना है इनटू वेरिएंस ऑफ y हैट, वेरिएंस ऑफ y. यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर टोटल. जस्ट वर्कआउट एंड लेट मी नो. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर वेरिएंस ऑफ y हैट का फॉर्मूला n स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ y बार है ना. हाँ, तो सर वहाँ पे आपने वेरिएंस ऑफ y लिखे, सर वेरिएंस ऑफ y बार आएगा, वेरिएंस ऑफ y हैट. किधर किधर, सर यहाँ पे नीचे y इक्वल टू n y बार के बाद वेरिएंस ऑफ y हैट. ये बोल रहे हैं. हाँ सर. नहीं सर, उसके ऊपर वाला. किधर, सर y इक्वल टू n y बार के नीचे वाला स्टेप. ये बोल रहे हैं. हाँ सर. सर नहीं, y इक्वल टू n. ये वेरिएंस ऑफ y ही है ना. हाँ सर, वो नहीं सर, उसके ऊपर वाला. ये वाला बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं, ये लाइन. सर सेकंड लाइन, सेकंड. नीचे से सेकंड सर. हाँ नीचे नीचे सेकंड, दिस वन. यस सर, सेकंड वाला. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है,
सर वहाँ पे y hat आएगा, वेरिएंस ऑफ y hat। वेरिएंस ऑफ y हैट, हाँ सर। एस्टिमेट बोला है वहां पे क्या? ठीक है, एस्टिमेट दे हैव मेंशनड हियर, एस्टिमेट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। So you can use estimate because you have derived it na, so you can use it, no problem. So this you have सर calculated. हेलो हेलो हाँ सर बोलिए, हाँ बोलिए। सर 19 को छुट्टी है क्या? हाँ 19 को हॉलीडे है क्या सर? नहीं, अभी 2 दिन ना बेटा, इसका टीवाई का अभी एग्जाम ये हुआ है ना, डिक्लेयर हुआ है ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो